Good morning, friends. This is Manish Khandelwal. I am a mechanical engineer having 36 years of experience, out of which 16 years I spent in auto sectors, handling production, quality, maintenance, PPC, supply chain. Actually, I have received some feedback from the friends that I should be speaking in Hindi as well. I should mix Hindi and English both. So today's session, I will speak both in Hindi and English. If people want me to present separately in Hindi and English, I shall do that also. So today we are discussing on non-value added activities. So first of all, let us divide the activities into two parts in a shop floor. One is the value added, another is the non-value added. So value added activities are those for which the customer pays you money. Simple. Non-value added activities the customer do not pay. Now these non-value added activities can be divided into two. One is the non-essential non-added value. Second is the essential non-value added. Now when we say essential non-value added, that means the factory license, clearance from the pollution control, clearance from the fire and safety department, all these legal requirements will be coming in this bracket. Customer doesn't pay for these, but these are required. Similarly, incoming raw material inspection, in process material inspection, finished good inspection, lab inspections, all these things will be essential, but these are non-value added. So we can't do anything on this. Now remaining activities are non-value added activities, and we should know about these activities and we should try to reduce these activities as much as possible. So what are those? These are known as Tim Wood. We'll just go into detail. And first of all, in this graph, please note that these values are assumed values. Maybe very close to the real one, but just assumed values. Now, what are Tim Wood's non-value added activities? T is transport, I is inventory, M is motion, W is waiting, O is overproduction, another O is overprocessing, D is defects, and S is skill. So this is a waste. Friends, downtime is also a waste. So if you just see, maybe coincidentally it is happening, D is coming here, O is coming here, W is coming here, and N is basically non-skilled. Here of course skill is there, non-skilled operator. We'll just this also, N also is okay here. T is transport, I is inventory, M is motion, and overproduction we can always say excess production. So this is downtime. This also is a waste. जो पहला हमारे लॉस है ट्रांसपोर्टेशन लॉस. ट्रांसपोर्टेशन लॉस होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल और डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मटेरियल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाते हैं या डेटा को जैसे मेल वगैरह हम भेजते हैं, तो इनका जो मूवमेंट है इसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है. शॉप फ्लोर में स्टोर मटेरियल इशू करता है, लाइन तक पहुंचता है, ये जरूरी एक्टिविटी है और इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. जो भी टाइम हमारा लगता है इसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन लॉस होता है. इसका ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, ये सब समझते हैं, लेकिन इसको हम कम से कम कितना कर सकते हैं वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है. दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोर से हमें गलत मटेरियल इशू हो जाता है.
मांगा ए था, शायद उसने बी हमें इशू कर दिया। वो लाइन पे गया, लाइन पे ऑपरेटर्स ने उसको देखा, रिजेक्ट किया, वापस चला गया। तो इस टाइप का जो लॉस होता है ये कंप्लीटली अवॉइडेबल है, और ये एक ट्रांसपोर्टेशन लॉस इस टाइप का भी होता है। एक होता है जिगजैग मोशन मटेरियल का, अगर हम लाइन का हमारा जो लेआउट है वो स्मूथ नहीं है तो मटेरियल को अननेसेसरली ज्यादा मूव करना पड़ता है। सीधा लाइन चलने की जगह उसको जिगजैग मोशन में चलना पड़ता है। एक्स्ट्रा मूव करेगा तो एक्स्ट्रा उसको टाइम लगेगा और ट्रांसपोर्टेशन लॉस ज्यादा होगा। एक होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग, अगर प्रोसेस फ्लो की ठीक नहीं है। अगर मुझे मालूम है मुझे ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है, तो क्लियर है बिल्कुल। अगर मेरे को नहीं पता इसको, मेरे को ट्रेनिंग सही नहीं है या अंडरस्टैंडिंग मेरी सही नहीं है, हो सकता है मैं पहले ए से सी पे चला जाऊं, फिर मेरे को बताया या नहीं भाई सी से बी पे जाना है, तो ये मेरे को अननेसेसरली मेरा ट्रांसपोर्टेशन लॉस हुआ। दीज लॉसेस हैव टू बी कंट्रोल्ड एंड रिड्यूस्ड। एक होता है ये शॉप फ्लोर पे, जैसे सर्कुलर मशीन है, यहाँ पे कटिंग के लिए एक ही पॉइंट है और ये ब्लॉक्स मेरे घूमते हैं इसमें सर्कुलर मशीन में और एक एक करके कटते रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस का मेरा कंस्ट्रेंट है, मुझे ऐसे ही करना पड़ता है इसमें। अगर मैं इन ब्लॉक्स को नीचे रख दूंगा तो एक एक ब्लॉक करके काटने में टाइम ज्यादा लगेगा। पहले एक काटूंगा, फिर दूसरा काटूंगा, फिर तीसरा काटूंगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें मुझे मालूम है कि मेरा ब्लॉक एक कटने के बाद एक पूरा जब सर्कल काटेगा तो वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन लॉस आएगा उसमें, लेकिन ये मुझे करना पड़ता है। इसका इंपैक्ट क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन लॉस में? इंपैक्ट डेफिनेटली हमारा एक्स्ट्रा रिसोर्स जो है वो यूज हो गया। मटेरियल को मूव किया, इसका मतलब आदमी भी मूव कर रहा है साथ में उसके साथ में जो इक्विपमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, वो भी मूव कर रहा है उसके साथ में। तो मेरा रिसोर्स ज्यादा लग गया, मेरे को उसमें समय भी ज्यादा लगा। और जब मैं उसको मटेरियल को इधर से उधर घुमा रहा हूं तो चांसेस ऑफ डैमेज भी हो जाते हैं। जो मेरे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हैं उनका वियर टियर ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन लॉस के मेरे। So this is data. For example, the exchange of mails, we do it. So this is also transportation. This is also waste. And in the typical government sectors, previously also, now also, some files are moving. So these papers are moving from one place to another place. So this is also a loss. Some extra resource we use and then time we are consuming here. Next loss is inventory. Inventory is nothing but the material which we have purchased and which has not been sold. Valued material waiting for next process. Material हमने खरीद लिया है और प्रोसेस के लिए इंतजार कर रहा है। इसमें रॉ मटेरियल है जो हमने खरीदा है, या वर्क इन प्रोसेस है, या फिनिश गुड्स है, जो भी मटेरियल हमने खरीद लिया है और नहीं बिका है वो हमारा इन्वेंट्री में आएगा। इसके रीजंस होते हैं, एक तो पुअर मार्केट फोरकास्ट। कभी हम लोग ज्यादा मटेरियल खरीद लेते हैं और जो मार्केट फोरकास्ट होता है, फॉर एग्जांपल बोलते हैं 100 पीस का ऑर्डर आएगा इस महीने में, आता 10 का ही है, तो प्रोक्योरमेंट तो पहले ही करना पड़ता है हमें। तो एक तो उस रीजंस की वजह से हमें एक्स्ट्रा हमारे पास इन्वेंट्री एक्यूमुलेट हो जाती है। एक होता है वर्क इन प्रोसेस लाइन इम्बैलेंस। अगर हो मेरा, अगर सब्सिक्वेंट प्रोसेस का अगर साइकिल टाइम कम होगा, मेरी लाइन इम्बैलेंस होगी, तो मेरा बीच में वर्क इन प्रोसेस कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे मेरा मटेरियल पड़ा हुआ है। एक होता है हमारा ओवर प्रोडक्शन। कभी कभी हम सेफ होने के चक्कर में ओवर प्रोड्यूस करके बैठ जाते हैं, जिससे कि हम लोग सेफ रहेंगे। अगर कभी ऑर्डर्स में फ्लक्चुएशन हुआ तो वहां पे भी हमारी इन्वेंट्री आ जाती है। एक होता है अनरिलायबल सप्लायर्स। कभी कभी हम लोग, हमारे सप्लायर्स अगर रिलायबल नहीं है उतने, तो हम उनसे ज्यादा मटेरियल लेके रख लेते हैं अपने पास। उसका रीजन केवल ये होता है कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो सप्लायर रिलायबल नहीं है, वो हमें टाइम पे देगा या नहीं देगा, तो इसलिए हम उससे ज्यादा मटेरियल लेके रख लेते हैं। दैट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर हायर इन्वेंट्री।
लॉन्ग चेंज ओवर्स, किसी चीज के अगर हमें चेंज ओवर बड़ा होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए, सपोज हम किसी चीज में चेंज ओवर में 1 घंटा लगता है, तो हम उसको अवॉइड करने के लिए हम उसके ज्यादा पीस बना के बैठ जाते हैं, जिससे कि उसका चेंज ओवर हमें ना करना पड़े, एक बार या 2 बार हम लोग उसमें बचा सकें। सो दीज आर द रीजंस फॉर द इन्वेंट्री। और इसका जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड मोशन, वेस्ट होता है हमारा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब मटेरियल को आगे हमें मूव करने में, और आदमी को उसमें जो हम लोग यूज करते हैं। देन ज्यादा मटेरियल होगा तो चांसेस ऑफ डैमेज भी हमारे ज्यादा हो जाएंगे। चांसेस ऑफ डैमेज के साथ साथ हमें स्पेस की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। हमारा जो भी हमने मटेरियल खरीदा है उसमें पैसा ब्लॉक हो जाएगा, जब वो पैसा हमें जब भी मिलेगा जब हम उस मटेरियल को सेल कर पाएंगे। और एक और इसमें रिस्क होता है दोस्तों, वो होता है ऑब्सोलेंस का। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों ने ज्यादा इन्वेंट्री खड़ी कर ली अपने पास, और उसको कस्टमर ने थोड़े दिन के बाद कहा भाई हम ये मॉडल अब नहीं बनाएंगे, या हम ये प्रोडक्ट अब नहीं यूज करेंगे। तो हमारे पास जो रेडी प्रोडक्ट होता है या उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे पास वेस्ट हो जाता है सारा। तो ये रीजंस हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, अगर मैंने फिनिश गुड पीछे दिखाया था रॉ मटेरियल का या वर्क इन प्रोसेस का, या फिनिश गुड को देख सकते हैं मटेरियल, दिस इज ऑल मनी। देन जैसा भी बताया रिजेक्टेड है या रिटर्न मटेरियल। रिटर्न मटेरियल वो होता है जैसे हमने बेच दिया सप्लायर कस्टमर को, एंड कस्टमर ने उसे फॉर एनी XYZ रीजन रिजेक्ट किया, वापस भेज दिया, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल विद मी। कुछ एज्ड मटेरियल होता है जिसकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई हमने कंपोनेंट लिया, उसमें बताया उन्होंने कि भाई मेरे 1 साल तक ये सही रहेगा। जैसे हम लोग कोई चीज खरीदते हैं उसमें लिखा होता है बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट, तो इसकी एजिंग इतनी है, पता लगा हमारे पर इन्वेंट्री ज्यादा रखी और रखे 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 एक्सपायरी डेट भी निकल गई उसकी। स्लो मूविंग आइटम इसमें आ जाते हैं। साल में मेरे को केवल 10 पीस लगने, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 50 पीस पड़े हैं, 5 साल की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, भगवान जाने अगले साल वो मटेरियल चलेगा भी नहीं चलेगा। सो दैट इज ऑल्सो स्लो मूविंग इन्वेंट्री। रिवर्क, मेरे पास जो इन प्रोसेस मेरे पास जब कोई डिफेक्ट आता है तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जो मेरे को रिजेक्ट करना पड़ता है, स्क्रैप करना पड़ता है। कुछ पार्ट ऐसा होता है जो मैं रिवर्क कर सकता हूँ, रिवर्क करके उसको मैं फिर बना सकता हूँ। तो रिवर्क का जो मेरे पास मटेरियल पड़ा होता है दैट इज ऑल्सो इन्वेंट्री। जो एक्सेस मटेरियल है वो तो है ही एक्सेस मटेरियल इन्वेंट्री। तो ये सारी की सारी चीजें मिला के अगर आप देखते हैं तो ये भैया मेरे पूरा का पूरा दिस ऑल इज मनी, दिस इज मनी, this money I have spent already, I have already put, I'm not getting anything out of it. So inventory is very, very dangerous. It is occupying the space as well. Next comes motion. Motion क्या होता है? Unnecessary movement of a person in the process. It is not covering the material हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था, इसमें मोशन में है unnecessary movement of the person. इसका रीजन क्या हो सकता है? डिफिकल्टी इन रीचिंग टू मटेरियल। मेरा मटेरियल थोड़ा सा हाइट पे ज्यादा रखा है, मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं, अपने हाथ को उठा रहा हूं, दैट्स अननेसेसरी मोशन। मेरे पास बिल्कुल राइट साइड में होना चाहिए मटेरियल बिल्कुल। देन समटाइम्स आई एम सर्चिंग, ये देखिए सर्च कर रहा है मेरे को कौन सा टूल चाहिए, जो टूल चाहिए वो कहां पर रखा हुआ है, एक इधर फेंका हुआ है, 2 इधर फेंके हुए हैं। अगर मैंने इन्हें प्रॉपरली लगाया हुआ है, ऐसे प्रॉपरली मटेरियल को रखा है, इन ये है, आउट ये है, ये मेरे टूल हैं, यहाँ पे मैंने काम किया, इसको कर दिया, तो मेरे को कोई भी इसमें लॉस ज्यादा नहीं है। इसमें भी जो भी मेरा मोशन होगा इधर उधर अगर मैं चलता हूँ वो मोशन होगा, बट इसके मुकाबले मेरा लॉस बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे। देन
शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, दिस रिजल्ट्स ट्रांसपोर्टेशन लॉस ऑल्सो। अगर मैं मटेरियल को शिफ्ट कर रहा हूं, जैसे मैं वहां से स्टोर से लेके आ रहा हूं मटेरियल को, तो ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन लॉस है मटेरियल का है, लेकिन आदमी भी मूव कर रहा है, so this is motion loss as well. Then if I am doing double work, मैं यहां पे एक काम करता हूं, फिर उसी चीज को मैं दोबारा कर देता हूं, चेक करके फिर दोबारा करने की कोशिश करता हूं उसे। समटाइम आपने देखा होगा स्क्रू टाइट कर दिया, फिर दोबारा टाइट कर, फिर और टाइट कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। So this is also a double work, this is also motion loss. Then over processing, we'll just study later. Over processing or double work. Over processing, we'll just see this is something which of customer is not paying to us. कस्टमर हमें अगर सोने के पैसे दे रहा है तो हम हीरा क्यों दें उसे, हम सोना ही देंगे उसे। देन पुअर लेआउट, अगर लेआउट हमारा गंदा है तो पता लगा, ये जैसे आपने देखा होगा ये बिल्कुल लाइन पे काम कर रहे हैं, अगर ये वाला काम और इसके बाद नेक्स्ट ये आता है, अगर ये वाला जो सब ऑपरेटर है ये कहीं यहाँ बैठा होगा तो पहले वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वहां जाएगा, ये सारे के सारे एक ही लाइन में लगे हैं, ये भी अच्छी बात है। पता लगा अगर अलग अलग होंगे तो ये भी लॉस होगा। तो लेआउट अगर मेरा प्रॉपर है तो मोशन लॉस मेरा कम से कम होगा। इनकंसिस्टेंट वर्क, सिंपल दैट, अगर एक जो मेरी स्मूथ है, जो रिदम है मेरा बना हुआ, मेरे पास वो रिदम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कभी एकदम तेज काम करना शुरू कर दिया, कभी कभी एकदम धीमे काम करना शुरू कर दिया, तो इट इज गोइंग टू बी लॉस। अगर धीमे काम करूंगा तो मोशन लॉस होगा मेरा। एंड अनक्लियर स्टैंडर्ड, ये नहीं पता मुझे कि पहले एक करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, ABC करना है या ACB करना है या ADCB करना है। तो ऑपरेटर वो कभी ABC जाता है, कभी ABCD जाता है, कभी ACDB जाता है। तो दिस इज अनक्लियर। अगर मेरे स्टैंडर्ड होंगे कि मुझे ABCD ही जाना है तो देयर विल नॉट बी, और देयर विल बी लेसर मोशन लॉस। जैसे यहाँ पे आप मटेरियल मूवमेंट है वो ओवर बर्डन है, यहाँ पे लेके जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रेचिंग का जैसे मैंने आपको बताया था, वो ऊपर हाथ ऊपर करके कर रहा है। इधर देखिए आप, इसको इसके पीठ में दर्द हो सकता है ऑपरेटर की, हम क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे इसको एक स्टैंड दे दे, एक बढ़िया सा स्टैंड लगा दिए इसमें, ये हमारा ऊपर हो जाएगा। जब ये ऊपर होगा तो ये सीधा हो जाएगा। तो इसमें जो टायर्डनेस ऑपरेटर्स की होगी, जो इंपैक्ट होगा वो हमारा कम हो सकता है। इसकी वजह से हमारा टायर्डनेस आती है। जब हम ऐसे काम करते हैं तो श्योरली साइकिल टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे एफिशिएंसी निकलती है। ऐसे काम करते हैं तो चोट लगने की भी संभावना जाती है। नेक्स्ट नॉन वैल्यू एडेड is waiting. Waiting is nothing but idling by a person. The person is not clear as to what is to be followed. He is not having the sufficient information to start the day. And person is standing near the machine and he has got nothing to do. So this is one of the reasons that the machine operator is not having the clear information or the instructions. There can be a reason where the lines are not balanced, where one station or the station number B is having more cycle time than the station number A. So station A is quickly making the product, whereas the station B is slower. So what will happen? The material at station B or before station B shall get accumulated. Once the material is accumulated, in that case the operator at station A will stand. He will wait for clearance of the inventory. First let the inventory get cleared, then only I will start working. This is again a waiting loss. या इफ क्वालिटी प्रॉब्लम कुछ आ जाता है, क्वालिटी अगर प्रॉब्लम आ गया है तो क्वालिटी ने लाइन रोक दिया है, यू कांट डू एनीथिंग, वेटिंग लॉस हो गया। मशीन ब्रेकडाउन हो गई, मशीन जिस मशीन पे जो ऑपरेटर काम कर रहा है उस पर आप
कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेटर को वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी लाइन, पूरी लाइन को वेट करना पड़े, अगर पूरी एक लाइन है तो उसको लाइन को वेट करना पड़ सकता है। स्टोर ने टाइम से हमें मटेरियल इशू नहीं किया, वेटिंग फॉर द मटेरियल, अगेन लॉस। मैन पावर अगर मेरे पास सफिशिएंट नहीं है तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा प्रोसेस को कंप्लीट होने का, अगेन वेटिंग लॉस। चेंज ओवर मेरा लाइन में किसी एक मशीन में बड़ा चेंज ओवर है, तो जब तक वो चेंज ओवर हो रहा है और ऑपरेटर इन्वॉल्व नहीं है उसमें, तो फिर ऑपरेटर वेट करेगा कि कब चेंज ओवर कंप्लीट हो, कब मैं अपना काम करूं, अगेन वेटिंग लॉस। नेक्स्ट आता है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन में हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। 100 पीस की जरूरत थी, 200 बना के बैठ गए, दिस इज ओवर प्रोडक्शन। उसका रीजन क्या है? रीजन हो सकता है एक तो हाई वेरिएशन इन शेड्यूल्स। कोई पीस है मैं बना रहा हूं उसके हमेशा की 100 पीस में हमेशा बनाता रहता हूं, लेकिन अचानक मेरे पास अगर शेड्यूल जो है एकदम रिड्यूस हो गए, 50 हो गए या 25 हो गए, तो मेरे पास इन्वेंट्री हो गई, मेरे पास ओवर प्रोडक्शन हो गया उस चीज का। अगर सप्लायर रिलायबल नहीं है तो ऐसे सप्लायर से सामान लूं कि जो इंपॉर्टेंट सप्लाई दे रहा है मुझे, बट अगर वो रिलायबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा अपने पास बना के रख लूं उसका मटेरियल का, जिससे कि कोई स्टॉक आउट वगैरह ना हो, मैं कस्टमर को सप्लाई कर पाऊं। सप्लाई मेरा अनरिलायबल है तो मैं अपने एंड पे थोड़ी सी इन्वेंट्री रखता हूं, मैं ओवर प्रोड्यूस थोड़ा करके पड़ता है मेरा। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज खत्म नहीं हुई है, अगर एक मैंने रोल लिया, उस रोल में पॉलिथीन बंधा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, उस पॉलिथीन को मैंने यूज किया, यूज करने के बाद मैंने एंड में देखा कि उसमें केवल 8, 10, 15 मीटर केवल बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि यार उसको खाली रखूंगा या स्टोर में वापस दूंगा? एक काम करता हूँ, सारा ही यूज कर लेता हूँ, तो मैं कुछ और प्रोड्यूस कर लेता हूँ उससे। तो जो मेरे पास मटेरियल है उसको मेरे को खत्म करने के लिए, कभी कभी मैं कहता हूं कि यार अगर मैं इसको थोड़ा सा और बना लूं, अगर मैं आज 100 ऑर्डर आया, कल भी 100 की संभावना है, तो एक काम कर लेता हूं, 100 और बना लेता हूं, जिससे कि कल चेंज ओवर नहीं होगा, कल मैं एक चेंज ओवर कम होगा मेरे पास, तो एक चेंज ओवर कम करने के लिए मैं प्रोडक्शन ज्यादा कर लेता हूं आज। ये एक रीजन होता है। इसमें जैसे लिखा हुआ है हाई इन्वेंट्री, ब्लॉक्ड फंड्स, बिल्कुल सही है, पैसा लगा हुआ है इसमें, सारा का सारा बना के रखा हुआ, पैक किया रखा हुआ है, लेकिन मैं उसे बेच रहा हूं क्योंकि ऑर्डर नहीं है, मैंने तो प्रोडक्शन ज्यादा करके रख लिया है, लेकिन मेरा पैसा सारा फंसा हुआ है उसमें। अब इतना बना के रख लिया है कि डैमेज के चांस भी हो सकते हैं, इतना बना के रख लिया कि उसके लिए मेरे को थोड़ा जगह भी चाहिए एक्स्ट्रा, और ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ऑर्डर वो प्रोडक्ट ही बनाना बंद कर दे और मेरे इन्वेंट्री जो है पूरी नहीं हो। ऐसा बहुत हो चुका है, मैं खुद फेस कर चुका हूं इस चीज को। सो ओवर प्रोडक्शन के दोस्तों ये नुकसान है। So next is over processing. Over processing is for which the customer is not paying me anything. It is not adding value to the product. Means अगर मेरे को जो प्रोडक्ट मेरे को बेचना है, जो भी उसके स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से मैंने बना लिया, अब मैं उसमें एडिशनल काम करूंगा तो कस्टमर इज नॉट गोइंग टू पे मी फॉर दैट, एंड दैट इज ओवर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पाइप काटा है, पाइप में थोड़े बर्स आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कस्टमर बोलता है कि यहाँ पे बर्स का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसका बर्स है अगर तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसका यूज से जैसा है, लेकिन हमने उन बर्स को साफ किया, एमरी से उसको साफ किया। सो दिस इज ओवर प्रोसेसिंग। इसका रीजन क्या हो सकता है? जो इसको साफ कर रहा है उसको अनक्लियर है, उसको ये पता ही नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जो ऑपरेटर है जो ये कर रहा है उसको पता ही नहीं है इसका एंड यूज क्या होने वाला है, या इसको बनाने के लिए
जो भी मेरे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी होना चाहिए था वो मैंने नहीं दिया हुआ, या मैंने कभी किया टाइटर टॉलरेंसेस दे दिया अपने यहाँ। मेरे को बताया किसी कस्टमर ने कि इसको मेरे को 100 ± 5, इसका मतलब 95 से लेकर 105 तक आप मेरे को दे सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने शॉप फ्लोर में जाके बोला नहीं 95 से 105 ही, इसको भैया मेरे 98 से 102 के बीच में बनाना है। तो टाइटर टॉलरेंस कर दी मैंने ऑपरेटर को, फिर उसको अच्छी तरीके से ओवर प्रोसेस करना पड़ा जिससे कि वो विद इन टॉलरेंस रहे। और वोर्न आउट टूल और डाइज होते हैं जिसकी वजह से मुझे ओवर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल किसी पार्ट में, जैसे ये वाला पार्ट एक हमने लिया हुआ है, ये एक प्लास्टिक मोल्डिंग है जिसमें फ्लैश आ रहा है, यहाँ पे ये फ्लैश रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मेरा डाई या इंजेक्शन मोल्ड जो है, मेरा मोल्ड अगर सही होगा तो फिर ये फ्लैश नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा, इसको आना भी ऐसा चाहिए ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर ये वोर्न आउट है मेरा तो फिर ये फ्लैश आएगा, फिर फ्लैश आएगा तो ऑपरेटर इसको लेगा और फिर उसको फाइल से क्लीन करना पड़ेगा। दिस इज ओवर प्रोसेसिंग, जिसको नहीं करना चाहिए था मुझे करना पड़ा, बिकॉज माई टूल्स एंड डाई दे आर बेसिकली वोर्न आउट। समटाइम्स ये दिखाया हुआ एक कोई पाइप है उसमें पेंट किया हुआ है, तो पेंट उन्होंने मांगा था हमें 10 माइक्रोन का दे दो, लेकिन हमने उसको 20 माइक्रोन का कर दिया पेंट। सो दिस इज ओवर प्रोसेसिंग, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने दे दी जिसका हमें पैसा नहीं मिलने वाला। सेकेंड लास्ट इज डिफेक्ट। आई थिंक डिफेक्ट के बारे में हम सबको अच्छी तरह मालूम ही है। डिफेक्ट से तो प्रोडक्ट हम वी कैन नॉट सेल। आप ये देख सकते हैं सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये गुड पार्ट्स हैं एंड इतना सारा ये रिजेक्शन लगा हुआ है। इसका रीजन क्या हो सकता है? एक तो स्किल्ड मेरे पास मैन पावर उस ऑपरेशन पे नहीं है, या मेरे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वहां पे गलत है या क्लियर नहीं है, या मेरे पास जो मैं वर्नियर से उसको मेजर कर रहा हूं वो कैलिब्रेटेड नहीं है प्रॉपर। सो मैं मेजर कर रहा हूं उसे 100.2, एक्चुअल में वो है 98.9, क्योंकि कैलिब्रेशन सही नहीं है तो मैं गलत पार्ट बना रहा हूं और डिफेक्ट जनरेट कर रहा हूं। कभी कभी मेरी मशीन फेल हो जाती है, प्रेशर हो सकता है मेरे को हाइड्रोलिक प्रेशर मेरे को देना पड़े, से 100 बार का प्रेशर देना है, बट मशीन मेरी 100 बार प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, वो केवल 85 करती है या कभी कभी ज्यादा कर देती है, तो उस वजह से मेरे को डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। वोर्न आउट टूल्स, जिग्स एंड फिक्चर्स का भी जैसे हमने बताया भी है कि अगर वोर्न आउट होंगे तो उससे जनरेट होगा हमारा डिफेक्ट। इसमें डिफेक्ट्स जेंटलमैन, इनमें डिफेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो रिपेयर कर सकते हैं, रिवर्क कर सकते हैं, और कुछ को हमें स्क्रैप करना पड़ता है। तो जो रिपेयर और जो हम लोग रिवर्क करते हैं, हम डिफेक्ट की कैटेगरी में उसको भी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें हम एडिशनल कॉस्ट भी और देंगे उसको रिपेयर करने में। और इसका एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, ओवर प्रोडक्शन, जैसा हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे देयर इज ऑलवेज अ चांस कि पीस जो है वो डिफेक्ट हो जाए इधर उधर ज्यादा मूवमेंट में, या एक्सेस इन्वेंट्री है तो बहुत सारा मटेरियल एक ही जगह पड़ा हुआ हो तब उसमें डिफेक्ट आ सकता है। ओवर प्रोडक्शन में भी अगेन सेम प्रॉब्लम आ सकती है कि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, बहुत छोटी जगह पे बहुत सारा सामान रख दिया है, तो उस वजह से डिफेक्ट आ जाए। इम्पैक्ट सेम है, वेस्ट ऑफ रिसोर्स। अगर हमने कोई पीस हमारा रिजेक्ट हुआ है तो हमारा मैन पावर भी गई, उसमें मशीन भी गई, उसका मटेरियल भी गया, तो हमारे पास जो रिसोर्स है हमारा कंप्लीट वेस्ट है। रिवर्क भी होता है तब भी वेस्ट है। देन अगर ये डिफेक्ट पास हो जाता है कस्टमर को, सो देयर इज ए चांस कि कस्टमर की कंप्लेंट आ जाए, विच इज वेरी बैड, एंड दिस मे रिजल्ट इन लूजिंग द बिजनेस। कस्टमर कहेगा यार तुम तो खराब कंपोनेंट दे रहे हो, हमने विल नॉट बाय फ्रॉम यू। देन एक्स्ट्रा स्पेस इज रिक्वायर्ड टू कीप द रिजेक्टेड मटेरियल। एक्स्ट्रा मैन पावर, मशीन इज रिक्वायर्ड टू रिवर्क इफ पॉसिबल। सो जो हम लोगों ने अभी रिवर्क वगैरह की बात की, रिवर्क हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, पर उसके लिए एक्स्ट्रा मशीन और एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी।
And last is skill. Waste of untapped talent. मेरे पास टैलेंट है उसका, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं. मेरे पास वेल्डर है, उसको मैंने मशीन पे लगा दिया. उसका रीजन क्या हो सकता है? पुअर रिक्रूटमेंट सिस्टम. जब मेरे को वेल्डर की जरूरत थी, मैंने वेल्डर की जगह मशीनिस्ट रिक्रूट कर लिया. जब मशीनिस्ट की जरूरत थी तो मैंने वेल्डर रिक्रूट कर लिया. रिक्रूटमेंट सिस्टम में ठीक नहीं है मेरा. देन नॉट प्रोवाइडिंग एनफ टूल्स. उस ऑपरेटर को जो वहां पे काम कर रहा है उसको प्रॉपर एनफ टूल ना देना, उसकी वजह से वो अपनी स्किल को यूज नहीं कर पा रहा है. अगर कोई कारपेंटर है मेरे पास तो उसको मेरे को प्रॉपर टूल्स देने पड़ेंगे. वेल्डर है तो उसे प्रॉपर टूल्स देने पड़ेंगे टू शो हिज और हर स्किल्स. देन नो और पुअर प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑन मल्टीटास्किंग. इंडस्ट्री में कहीं भी हम लोग होते हैं वहां पे हर ऑपरेटर को प्लान किया जाता है, इसको हम ट्रेन करके मल्टीटास्किंग बना, जैसे कि वो एक की जगह 2 या 3 ऑपरेशंस पे काम कर सके. जैसे कभी भी अगर एब्सेंटिज्म हो या कभी कोई जरूरत पड़े तो हम उन ऑपरेटर्स को यूज कर सकें. तो अगर पुअर प्लानिंग है तो वहां पे भी हम लोग अपने जो ऑपरेटर की जो स्किल उसको हमने दी है उसको हम प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे. मोटिवेशन नहीं है. अगर इम्प्रॉपर हमारा रिवॉर्ड और रिव्यू सिस्टम अगर है और हम ऑपरेटर्स को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो दैट ऑल्सो विल बी ए वेस्ट ऑफ टैलेंट. ही विल बी not motivated, unmotivated person. He will not be able to produce or give his full to the organization. Less empowerment means he should be made responsible for doing things. हर चीज के लिए स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए. He should be given some free hand. Empower करना चाहिए जिससे कि he can feel himself more responsible doing things and show his talent. Last is politics. I'll not go in depth in this, but I'll say कि politics होती है शॉप फ्लोर पे, जिसमें कि कई बार हम लोग एक टैलेंटेड आदमी को we are not able to recognize him or use him properly. इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट जो भी हमारे पास अवेलेबल टैलेंट है उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं. दिस इज वेस्ट. लोअर आउटपुट एज अ पर्सन इंगेज इज सुटेबल टू अदर स्टेशन. वेल्डर जो है वो मशीन पे लगा दिया तो मशीन का आउटपुट तो उतना नहीं दे पाएगा. तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी लोअर आउटपुट. मे बी आफ्टर ट्रेनिंग ही बिकम्स ओके, बट इनिशियली तो देयर विल बी लोअर आउटपुट and chances of more rejection. Definitely if he's not trained, then there are chances that he will give more rejections. So this was all on Tim Woods, friends. कोई भी अगर आपको इसमें ऐसी चीज लगे जो नहीं समझ में आई हो, प्लीज डू नॉट हेजिटेट राइटिंग मी बैक. एंड आज मैंने जैसे पहले भी बोला था, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला है. अगर इसमें किसी को कोई कमेंट्स हो किसके, प्लीज मेरे को बताएं. एंड इफ यू लाइक द प्रेजेंटेशन, प्लीज like it and subscribe to my channel. Thank you very much. Thank you.